हाय, आई एम डॉक्टर शिखा फ्रॉम ब्लिस एस्थेटिक्स लुधियाना। आज हम डिस्कस करेंगे लेज़र हेयर रिडक्शन के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो वी हैव लॉट ऑफ क्वेरीज एंड पीपल हैव लॉट ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग दिस कि हाउ इज इट डन, हाउ इफेक्टिव इट इज. Laser hair reduction is a very safe procedure because we are just going little deep in the skin. So epidermis is covered and little part of the dermis is covered. So it is totally safe for the patient and totally safe for the person who is doing the laser. लेज़र हेयर रिडक्शन से दर्द नहीं होता है, बट एक सेंसेशन आती है कि जिससे जब हेयर को स्नैप करती है लेज़र राइट, तो एक सेंसेशन आती है. वैसे कोई दर्द नहीं होता है लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर में. लेज़र हेयर रिडक्शन वर्क्स ऑन अ फॉर्मूला ऑफ फ्रैक्शनल फोटोथर्मोलाइसिस. सो व्हाट हैपन्स कि आपके जो बालों में पिगमेंट है जिसको हम मेलानिन कहते हैं, वो उसको टारगेट करता है. और जहाँ ये मेलानिन पिगमेंट होता है उसके पास ही हेयर फॉलिकल या रूट ऑफ हेयर होता है एंड इट गेट्स बर्न्ड. सो द रूट इज बर्न्ड बाय दिस फिनोमेना. इट इज़ नॉट अ कॉस्टली प्रोसीजर. अगर आप अपनी वैक्सिंग की कॉस्ट फ्रॉम ईयर्स कैलकुलेट करो तो ये तो एक बहुत ही चीप प्रोसीजर है. नॉर्मली वी चार्ज राउंड अबाउट 4,000 per sitting for full face, especially the lower face sitting. So if you calculate the cost and just in 6 to 8 sittings you are off your hair. And if you count the waxing cost, I think it's over the years, then it's a costly procedure. Waxing is a costly procedure, not laser hair reduction. If you're going for 6 to 8 proper sessions of laser hair reduction and your hormones are in normal limits, then you may not have hair again on your body parts. But if you face some hormonal ups and downs, then you can get back those hair also, and then you can get more sittings. But if your hormonal status is normal and you take proper sittings, you don't get back the hair. Laser hair reduction can be done to any part of the body, be it face, be it other areas. The only difference is that the face in females, it is a hormone dependent hair are there, which is hirsutism, which we call normally as hirsutism. And other body parts, if you have hypertrichosis like legs, arms, back, abdomen, bikini area, underarms, everywhere you can get. The difference is only in the number of sessions. For face you have more sessions, for body you have less sessions. It is a totally safe procedure for pregnancy. Only one thing you have to keep in mind, sometimes some females before conceiving they are on certain hormones, and afterwards to sustain the pregnancy they are on some hormones which may make little imbalance of the hair. Otherwise, if it's a normal pregnancy, it is not a contraindication for laser hair removal. जो लेज़र हेयर रिडक्शन है वो हमें बड़ी वाइजली कहाँ से करवाना है, चूज़ करना चाहिए. सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप अपने कंसर्न्ड सर्टिफाइड डॉक्टर से मिलिए, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो आपको बताएगा कि वेदर आपके हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस है कि नहीं और आपको आपके टाइप ऑफ हेयर कैसे हैं. सो दैट इज़ द फर्स्ट विजिट एंड कंसल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कितना लेज़र चाहिए, कैसा लेज़र चाहिए और क्या करा जा सकता है. मैं आजकल नोटिस करती हूँ कि बहुत क्लिनिक्स हैं जो सर्टिफाइड नहीं हैं, वहाँ पे लेज़र हेयर रिडक्शन चल रहा है. मशीन ने जो अपना काम करना है, बट क्या नहीं करना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज़ फाइंड अ क्लिनिक वेयर देयर इज़ अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट टू डू ऑल दिस प्रोसीजर्स. सेकेंडली बात आती है मशीन्स. देयर आर लॉट वेराइटी ऑफ मशीन्स, और आप ये देखिए, आप यू कैन आस्क योर डॉक्टर कि विच मशीन दे आर यूजिंग, एंड FDA अप्रूव्ड मशीन होनी चाहिए. एंड थर्डली यू मस्ट ऑल्सो फॉर स्पेशली फॉर द बॉडी लेज़र, आप कुछ भी लेते हैं तो आप ज़रूर पूछिए कि भी कितनी किस्में सिटिंग्स लगेंगी. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. समटाइम्स द पेशेंट goes for rates or packages, but the most important thing is body laser is little different and face laser is little different. The number of sittings are different in both the lasers. I have answered almost all the queries.
अगर आपके पास कोई ऐसी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन पे जाकर उसको डाल सकते हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो आवर पेज।